Uh, First of all, non-corporate started in towns, from towns to countryside. Countryside we have seen two areas. One is the peasants of Awadh, the other one is the peasants of Gyudam Hills. Now we will go to plantation, factory, industry, Swaraj, freedom in plantation, which means the factory workers, the industrial workers, and we will specifically talk about Assam, the tea state, the tea factories. Okay. Now see, the workers, those who were working, everybody, they had their own way of understanding when it comes to idea of Swaraj. For example, समझो, नहीं समझ में आता तो पूछो. For this, what do you call, for the people of Gyudam Hills, if you ask them what is Swaraj, freedom, what is freedom for you? They will say, freedom for us means when we are allowed to move in and out into the forest freely without any restriction. जैसे हम पहले रहते थे वैसा हम जब रह पाएंगे, that is freedom, the idea of Swaraj for us. If you ask to the people, those who are living in towns, what is Swaraj for you? What did they do? Boycotting foreign clothes, foreign goods, foreign school, means British government, school, colleges, job and all. They need Indian governments, right? They start wearing khadi clothes. So that is the meaning of Swaraj for them. Same thing, the meaning of Swaraj, freedom, for the workers of this plantation, of these factories, industries, had a different meaning. Okay? जब Gandhi started non-cooperation movement, so these workers, those who are working in industry, उन लोगों के दिमाग में the meaning of Gandhi's Swaraj had a different meaning. उन लोगों का कुछ अलग सोच था. क्या अलग सोच था? For the plantation workers of Assam, ध्यान से सुनना. For the plantation workers of Assam, freedom means, or freedom meant, past tense, the right to move freely in and out of the confined space. मतलब माने कि इसका मतलब है पहले वो ये जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स, उन लोगों को जो कंपाउंड है फैक्ट्री का एरिया, इंडस्ट्री, अंदर ही फैक्ट्री, अंदर ही क्वार्टर होगा, रहने के लोगों का जगह, मतलब पूरा जिंदगी कंपाउंड के अंदर ही रहना है, ना घर जा सकता है, ना गेट से बाहर निकल सकता है. समझ में आ रहा है? Are you understanding? So that as a result, for the factory workers, Swaraj means जिस दिन हम अपने मर्जी से freely इस गेट के उस पार जा पाएंगे, अपने मर्जी से आ पाएंगे, क्योंकि आप ना हम अपने मर्जी से जा पाते हैं और एक बार घुस गए तो अंदर खत्म. Are you understanding? So that was the meaning of Swaraj for the plantation workers in Assam. Am I clear? Point by, just note the bullet points. This is one of the main. Yes. Sorry. Sure. Okay, listen. Okay, she has a doubt. Once more. For the plantation workers in Assam, plantation factory Assam में during those days 1920, 21, the main factory was tea, चाय पत्ती. Okay. So चाय पत्ती का जो फैक्ट्री होता है, फॉर एग्जाम्पल पकड़ो, ये हम जो रह रहे हैं, ये एक बड़ा सा चारों तरफ में गेट वाल है. ओके, ये मेन गेट, हम लोग सब कंपाउंड के अंदर है, फैक्ट्री भी अंदर, हम जहाँ सोते हैं, जहाँ रहते हैं, वो क्वार्टर, वर्कर्स का क्वार्टर, वो भी अंदर. रात दिन भर फैक्ट्री में काम किया, शाम हुआ फैक्ट्री से क्वार्टर गया, क्वार्टर में खाना पीना खाया, सोया, सुबह हुआ, फिर नहाया धोया, फिर फैक्ट्री, अगू फैक्ट्री पर अगू क्वार्टर, अगू फैक्ट्री, अगू क्वार्टर, फैक्ट्री, एक सर्कल, लाइफ, जिंदगी उसी के अंदर, उसी कंपाउंड के अंदर. कभी कंपाउंड से बाहर जाने का परमिशन नहीं है. कभी जो सबके मन में दिल होता है ना, एवरीबडी हैज गॉट अ विश. व्हेन यू गेट वेकेशन, समर ब्रेक जब तुम लोग को मिलता है, विंटर ब्रेक मिलता है, छुट्टी मिलता है, कहाँ जाते हो? कभी मामा के घर, कभी आंटी के घर, कभी घूमने जाते हो ना, कभी ग्रैंडमा, ग्रैंडपा. सो दिस वर्कर्स दे ऑल्सो वांट कि हम भी कभी घर जाए. अपने घर जाके लोगों से मिले नहीं, कंपाउंड के अंदर. समझ में आया? नाउ एम आई क्लियर? सो एज अ रिजल्ट when this non-cooperation movement started, तब इन फैक्ट्री वर्कर्स ने सोच लिया कि हमारे लिए फ्रीडम वो उस दिन होगा जिस दिन हम फ्रीली इन एंड आउट मूव कर पाएंगे. वो हमारे लिए उस दिन फ्रीडम होगा. Are you getting it? Am I clear? Now anybody has got it? Did you understand? Any doubt? No. Okay, next. So after what happened? So basically
this factory workers, they wanted to, this what you call, reconnect. They wanted to join the relationship, the link which they had with their family, because now once they entered into the factory, एक बार फैक्ट्री के अंदर घुस गया, ब्रिटिशर ने तो पूरा रिलेशनशिप ही काट दिया. कंपाउंड के अंदर रहो, बाहर जाना कोई अलाउड ही नहीं है. समझ में आया? सो उन लोग को दोबारा वो रिलेशन जोड़ना है. सो वो उन लोग के लिए फ्रीडम है, जिस दिन जोड़ पाएगा. Now as I told you earlier also, Britishers when they ruled us almost 200 years, approximately 191 years, they were very good in making law, rules, policies. रात को सोएगा, सुबह उठ के एक रूल बना देगा, राइट? राती टुपनी मारिबो, राती को उठिबो, किबा हपुन पैसा আজি পাই এইটো law. ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে বনাইছে, না মানিলে পানিশমেন্ট. রলেট এক্ট, মত আছে, মার্শাল ল, মানুহ একেলগত হ'ব নোৱাৰিব, যাৰ কাৰণে জালিয়ানৱালা বাগত চকু মুজি পেলাই দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ কৰি দিছিলে না. दुर्गा पूजा में जैसे बच्चा लोग पढ़ते हैं, जालियनवाला बाग में घुसा, जनरल डायर, क्यों? मार्शल लॉ है, तुम लोग एक साथ क्यों हो, मारो गोली. आर यू गेटिंग इट? सो मेनी लॉस लाइक दैट. देयर वाज वन लॉ कॉल्ड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. मैं समझाऊंगा, यू डोंट हैव टू मेमोराइज, तुम बस ध्यान से सुनो. इनलैंड एक्ट माने तो लॉ, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, एंड 1859 मतलब on which year it was passed. ये लॉ कब बना था? Are you getting it? Act means law, 1859 year. Now inland immigration, इसका मतलब समझो. Inland, land माने तो जमीन, right? धरती. और immigration, आना जाना बाहर से. Inland immigration act. कभी तुम लोग कभी बाहर जाते हो ना, तुम्हारा कभी दूसरे देश में जाओगे ना, इमिग्रेशन चेक होता है. कभी अगर बाहर ट्रैवल किए हो डिफरेंट कंट्रीज, तब पता चलेगा. इमिग्रेशन लॉ है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ, नहीं तो हिस्ट्री से मैं पहुँच जाऊँगा कहीं और. सो सिंपल लैंग्वेज, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. अंडर दिस एक्ट, इफ ए वर्कर wants to go out of the compound, अपने घर जाना चाहता है, अपना कंपाउंड जो वर्कर का जो एरिया है उसके एरिया से बाहर जाना चाहता है, उसको परमिशन लेना पड़ेगा. विदाउट परमिशन अगर आप जाते हो अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, विदाउट परमिशन इफ यू गो, दैट मीन्स यू आर वायलेटिंग द लॉ. বুঝি পাইছা? বুঝি পোৱা নাই? যেনেকৈ আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ ল আছে, 18 years হ'ব লাগে. Even though you know how to ride bike, how to drive car, but you will not get driving license, and you know how to drive. तुमने एक्सीडेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर तुम चलाओगे तो पुलिस पकड़ेगा, बिकॉज दैट इज इलीगल. क्यों? क्योंकि तुमने लॉ तोड़ा, यू आर नॉट 18. सो लाइक दैट अंडर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, तुमको अगर जाना है परमिशन लेके जाना. अगर बिना परमिशन का तुम जाते हो कहीं भी, निकलते भी हो, इसका मतलब तुमने लॉ तोड़ा. कौन सा लॉ? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, विदाउट परमिशन. क्लियर? अच्छा ठीक है सर. ओके, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, परमिशन लेना पड़ेगा, फाइन. बट व्हेन द वर्कर्स परमिशन लेने जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास परमिशन लेने जाता है, परमिशन वाज रेयरली गिवन. रेयरली मतलब सिंपल सीधा लैंग्वेज में बताओ, कभी कभार परमिशन मिल जाता है, केतियाबा परमिशन तो निदिए मेनली. Understand? Now I'll explain a simple language. Now for example, ऐसा मैं तुम्हें बोलूँ जे लाइक तुम लोग सबका मोबाइल फ़ोन मैंने ले लिया ड्यूरिंग क्लास आवर्स, और क्लास के बाद में दूंगा. तो मैंने बोला कि फ़ोन यहाँ पे रखो, किसी को इमरजेंसी होगा तो मुझसे मांगना, मैं फ़ोन दूंगा. करेक्ट? मैंने ये लॉ बनाया. लेकिन पकड़ो तुम लोग का सचमुच का इमरजेंसी है और तुम फ़ोन मांग रहे हो, मैं फ़ोन नहीं दे रहा. समझ में आ रहा है? पहले मैंने बोला फ़ोन रखो, जब भी ज़रूरत होगा मैं फ़ोन दूंगा, जब भी ज़रूरत होगा मैं फ़ोन, लेकिन जब भी मांगते हो मैं नहीं देता. अब मैं बोलूँगा विदाउट माई परमिशन, अगर किसी ने फ़ोन छुआ, फ़ोन पकड़ा, सीधा क्लास से निकाल लूँगा. तो लेकिन जब तुम परमिशन लेने आते हो, सर मैं एक बार फ़ोन लूँ, मुझे एक बार मम्मी को फ़ोन करना है, पापा को फ़ोन करना है, राइट, जाके बैठो, फ़ोन नहीं मिलेगा. समझ में आया ब्रिटिशर्स का? इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, विदाउट परमिशन यू कैन नॉट गो, बट जब भी परमिशन मांगने जाता है, नो,
परमिशन में क्या मिलता है? नो। सो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के क्या हुआ, बांध के रख दिया अंदर, बिकॉज बिना परमिशन तुम जा नहीं सकते। विदाउट परमिशन तुम जाओगे तो सबसे पहले यू हैव ब्रोकन द लॉ, कानून तोड़ा है, लॉ तोड़ा है, पनिशमेंट। और जब लॉ तुम परमिशन मांगने जाओगे, नो परमिशन। सो घुमा फिरा के अंदर घुसा दिया। एम आई क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, ध्यान से सुनो तो फिर तुम लोग को पूरा अच्छा से समझ में आएगा। यू डोंट हैव टू मेमोराइज, रट्टा नहीं मारना है, मगअप नहीं करना है, समझना है। यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। एम आई क्लियर? पीपल से दैट हिस्ट्री इज बोरिंग, हिस्ट्री इज नॉट एट ऑल बोरिंग। इट इज द टीचर्स जो हिस्ट्री को बोरिंग बनाता है। आके सिर्फ किताब पढ़ेगा तो बोरिंग बनेगा ही, समझोगे तो कभी बोरिंग नहीं बनेगा। रीडिंग तो तुम भी कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो ना? एबीसी तो आता है ना, एलकेजी से 10 तक 12 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो थोड़ा तो उतना तो आता है इंग्लिश। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छुटका एप्पल आता है ना? नहीं आता है तो उतना तो तुम भी पढ़ सकते हो। हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हिस्ट्री, स्टोरी, हिस्ट्री, जस्ट बैठ के कहानी सुनो और अपने वर्ड्स में लिखो। लेकिन कहानी समझाने वाला इंटरेस्टिंग चाहिए, नहीं तो मैं भी हिस्ट्री क्लास में कभी कभी, जब मैं तुम लोग के एज में था, मैं भी सो जाता था कुछ हिस्ट्री क्लास में। कुछ जैसे मेरा लेकिन कुछ हिस्ट्री क्लास मेरा ऐसा था, क्लास 12 या फिर मुझे याद है या क्लास 12 एंड क्लास 11 में तो मेरा सबसे बोरिंग था। क्लास 11 में समझ में नहीं आता था हिस्ट्री क्या हो रहा है, कब, मतलब मैं तो कब बेल मारेगा मैं ये देखता था। क्लास 12 में तो इंतजार करता था हिस्ट्री टीचर कब आएगा, क्योंकि टीचर वैसा था जब मैं क्लास 12 में। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच एवरीबडी? ओके, नेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ? Inland Immigration Act of 1859, you have to ask permission. Without permission you cannot go, but permission मांगने जाओ तो no permission। अरे भाई तो कैसे दे, मतलब तुम बांध दिया, इधर हाथ बांध दिया पीछे और मुंह के सामने रख दिया बिरयानी, लो खाओ। फिर बोलेगा अरे क्यों बिरयानी नहीं खा, खाओ ना। लेकिन तुम्हारा हाथ बांधा हुआ है, मुंह पे सर टेप, तुम और बार बार बोले खाओ ना बिरयानी खाओ, कैसे खाओ? अच्छा, नाउ दिस प्लांटेशन वर्कर्स, लिसन, जब उन लोगों तो ऑलरेडी घर नहीं जा पा रहे, they were frustrated, angered and all, but they couldn't do anything. But when they heard नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है, एट दैट टाइम thousands of workers, plantation workers, they decided we will not follow this what Inland Immigration Act, British rules and authority. Forget about British rules and policy. Non-cooperation. We will not cooperate. We will break the British law and we will. Come on, let us all go home. घर चलते हैं। क्या परमिशन, क्या इंडियन इमिग्रेशन है? गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया ऑल ओवर इंडिया। हम सब एक है, अभी हम नहीं मानेंगे, कोई परमिशन नहीं चाहिए, चलो चलते हैं। सो दिस प्लांटेशन वर्कर्स प्लांटेशन से निकल आया बिना परमिशन का, कहाँ जाने के लिए? घर। बिकॉज दे बिलीव्ड ब्रिटिश राज खत्म होने वाला है, अभी गांधी राज शुरू हुआ। व्हाट? गांधी राज। एंड another thing, they believe that according to Gandhi Raj, now everybody will be given their own land in their own village. अपने ही गांव में हमें हर किसी को अपना अपना ज़मीन मिलेगा। सो हमें किसी और के अंडर ब्रिटिश फैक्ट्री, ब्रिटिश प्लांटेशन, कहीं और जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने गांव में अपना ज़मीन मिलेगा, निजोर माटी। हाँ, निजोर माटी ने नीचे खेती बाड़ी को। चलो घर, चलो ठीक है, चलो निकल आया। कब निकल आया? हम ये कब का बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग दिस नॉन कॉर्पोरेशन 1920, 1921 का बात कर रहे हैं। बट यू नो द आयरनी इज दैट टुडे, आज कौन सा ईयर है? 2022। आज का डेट 27 अगस्त 2022 और हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 101 ईयर्स एगो, 1920, 1921 तब का बात कर रहे हैं। आज तक दिस प्लांटेशन वर्कर्स जो प्लांटेशन से निकल आए थे घर जाने के लिए, आज तक घर नहीं पहुंचा। हाँ, बुक में लिखा हुआ है आज तक 101 ईयर्स से वो लोग पैदल चल रहा है, घर जाना है, आज तक घर नहीं पहुंचा। क्यों? रीजन है
द रीजन इज ऑन द वे जब वो आ रहे थे, नॉन कॉपरेशन, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चालू हुआ था, वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम, उनका बात नहीं सुनेंगे. सो दैट टाइम ये जो रेलवे वाज अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, या फिर अभी जो हम जो बोलते हैं स्टीमर, फेरी गवर्नमेंट का फेरी होता है, रेलवे गवर्नमेंट का होता है गवर्नमेंट का, बट द वर्कर्स जो चलाते हैं, जो काम करते हैं, दोज आर इंडियन, वो तो इंडियन है ना. सो दे स्टॉप गोइंग टू द इंडियन वर्कर्स स्टॉप गोइंग टू द इंडियन रेलवे स्टेशन, इंडियन फेरी. सो दिस प्लांटेशन वर्कर्स फैक्ट्री से तो निकल आए, कुछ को ट्रेन से आना है घर, रेलवे स्टेशन पहुंच गया, कुछ को फेरी से आना है घर, तो क्या स्टीमर, पोर्ट, फेरी घाट पहुंच गया. फेरी कौन चलाएगा, ट्रेन कौन चलाएगा, धक्का मारेगा. सो देयर दिस प्लांटेशन वर्कर्स दे वर स्ट्रेंडेड, नो ऑप्शन, कहाँ जाओ, क्या करूं, नदी तैर के जाओ ना हवा में उड़ के जाओ. एंड देयर ओनली द ब्रिटिश पुलिस caught them. The British police वहाँ पकड़ लिया. And they were brutally beaten up. They were, इसलिए मैंने बोला था, वो लोग निकला था 1921 को, टुडे इज 27 अगस्त 2022, आज तक घर नहीं पहुंचा. आधा रास्ता से पकड़ के मार पीट के. Are you getting it? Hey, you laugh afterwards. First understand. Enjoy the class, fine, but first of all you have to understand. Did you understand? Yes, sir. Everyone? Yes, sir. All right. Go through. If you have doubt, ask me.